So, students, good evening. Today we are going to discuss the system of linear equations, solution of system of linear equations by the rank method. Let us suppose there is a equation system of equation a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to b2, d2, and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Now, a method you have already learned in the 12th class, that was ax into b. Similarly, we are using this method by the rank method. How we will solve it? Let's suppose we can assume a matrix A having the coefficient of xyz, that is a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. A matrix X which have the all variables X, Y, and Z, and a matrix B which has the constant values D1, D2, and D3. Or using the rank method, we made an augment matrix that is A, B, which can be written as A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, and with the constant values D1, D2, and D3. This is our augment matrix. Now we have to consider how to use it and how to work on it. Simple way is just find the rank of the augment matrix A by B. If the rank of A by B is equals to rank of A, and which equals to number of variable, n is the number of variables, then we can say the equation is consistent and have independent values. If rank of A augmenting matrix means is equals to rank of A and it is less than the number of variables, then we say infinite solutions. And case number third, if rank of augment matrix is not equals to rank of A, then we say no solution. You have to learn about that. This is the main point of our topic. इसको याद रखना है हमेशा कि ये कंसीडर इक्वेशंस हमें याद रखेंगे. Now let us take an example for this. Let's suppose हम एक एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करके करेंगे. Let's suppose हमें क्या है, solve the equations is x plus y plus z is equals to 6. Second equation is x plus 2y plus 3z is equals to 14. And the third equation is x plus 4y plus 7z is equals to 30. और मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले एक ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाऊंगा
that will be a by b. This will be 1 1 1 6 1 2 3 14 1 4 7 30. नाउ हमने पढ़ा है रैंक निकालने के लिए मेथड, एक्लियन मेथड, उसी का यूज करेंगे। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो करने के लिए हम कहेंगे R2 में लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 में लगाते हैं R3 माइनस R1। तो मुझे जो मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 1 1 0 1 2, इधर करेंगे तो 0 3 एंड दैट इज आई थिंक 6। सिमिलर वही चीज यहां भी अप्लाई करनी है हमें। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8, R3 माइनस R1 करेंगे तो मेरे पास आएगा 24। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और यूज करें हम कहें R3 goes to R3 minus 3R2, तो मेरे पास A by B will be 1 1 1 0 1 2। डायगोनल के नीचे ये एलिमेंट जीरो करना था, इसलिए मैंने ऐसे किया है। दैट विल बी 0 0 और ये भी 0। इधर मेरे पास क्या आया 6 8 R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2 यानी 0। अब मैं यहां देख सकता हूं कि रैंक ऑफ ए, मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये वाली, इतनी इजी। इसमें रैंक कितना आया मेरे पास 2, बराबर है रैंक ऑफ ए बाय ए ऑगमेंट मैट्रिक्स, उसकी भी कितनी है, 2 ही रो नॉन जीरो है, बट इट इज लेस देन नंबर एन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो कितने हैं यहाँ पे 3 XYZ, 3 वेरिएबल्स है ना। इट मीन्स इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कौन कौन से सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, हम उसे देखेंगे। क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को जो मेरे पास नॉन जीरो में जा रहा है उसको मैं एक कांस्टेंट वैल्यू मानूंगा। उससे पहले अगर इक्वेशन बनाए तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन बनेगी y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। आई विल से लेट z इज इक्वल टू k, देन y प्लस 2k इज इक्वल टू 8, then y is equals to 8 minus 2k। x और y और z की वैल्यू और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे, then x plus 8 minus 2k plus k is equals to 6। यहां से मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, that will be minus 2 plus k। therefore solution is x is equals to k minus 2, y is equals to 8 minus 2k, and z is equals to k. This is the required answer of our system of equation. ये कंसीडरेशन हमने किया क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस थी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमें दी हुई है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो कांस्टेंट वैल्यू जीरोज होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसका एक एग्जांपल और लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज देयर इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equals to 6। Second equation is x
minus y plus 2z is equals to 5. Third equation is 3x plus y plus z is equals to 8. And the fourth equation is 2x minus 2y plus 3z is equals to 7. मेरे पास चार इक्वेशंस दी हुई हैं. अब सबसे पहले इसकी ऑगमेंट मैट्रिक्स a by b, that will be 1 1 1 1 minus 1 2 3 1 1 2 minus 2 3 with the constants 6 5 8 7. नाउ हमें पता है एक्लियन फॉर्म के लिए हमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना होता है. तो ये डायगोनल बनता है, मेरे सारे एलिमेंट जीरो भरने होंगे. तो मैं वही करूंगा यहाँ पे R2 में अप्लाई करता हूँ R2 माइनस R1. R3 में अप्लाई करते हैं R3 माइनस 3R1. R4 में अप्लाई करते हैं R4 माइनस 2R1. तो मेरे पास A बाय B का जो फॉर्म बनेगा अब बनेगा दैट विल बी 1 1 1 0 minus 2 and that will be 1, that will be 0 and it will be minus 2 and minus 2. There will be 0 minus 4 and 1. साथ साथ इधर भी अप्लाई हो रहा वही कंसिडरेशन. तो 6 ये मेरे पास आएगा माइनस 1, ये मेरे पास आएगा शायद जब माइनस करेंगे तो R3 में R3 माइनस 3R1. तो R3 माइनस 3R1 दैट विल बी माइनस 10 और इसी तरह से नीचे माइनस 5. अब अगर मैं तो डायगोनल देखूं तो मेरे पास अभी ये 3 एलिमेंट बचे हैं जो मुझे जीरो करने हैं. तो फिर से लगाएं तो अब मैं अप्लाई करूंगा इसमें R3 में. R3 goes to R3 माइनस R2 जिससे ये जीरो हो जाएगा. एंड R4 में R4 माइनस 2R2. अब मेरे पास A बाय B जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी 1 1 1 0 minus 2 1 0 0 minus 3 and that will be 0 0 minus 1 with the constant form 6 minus 1 minus 9 and minus 3. अभी डायगोनल के नीचे अभी ये माइनस 1 और बचा है तो एक बार और कंसीडर करेंगे हम. दैट विल बी R4 goes to R4 plus 1 by 3 R3. अब मेरे पास कितना आएगा देन A by B will equals to 1 1 1 0 minus 2 1 0 0 minus 3 and 0 0 0. अब जरा इसको आगे कंसीडर करें तो यहाँ जो वैल्यू चेंज होगी क्योंकि हमने R4 और R3 में लगाया तो बाकी कांस्टेंट ऐसा ही 6 माइनस 1 माइनस 9. इधर कितना आएगा R4 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3. आई थिंक इधर माइनस लगाना चाहिए हमें या प्लस ही लगाना चाहिए. तो हमने यहाँ लगाया तो माइनस 1 था तो ये माइनस होना चाहिए एंड दैट विल बी 0.
अब हम यहां देखें तो रैनक्रॉफ ऑगमेंट मैट्रिक्स कितनी है मेरे पास, 3। रैनक्रॉफ ए, रैनक्रॉफ ऑगमेंट मैट्रिक्स मतलब पूरी मैट्रिक्स में 8 रो ऐसी है जो 0 है, तो मेरे पास 3 रो बची जो नॉन जीरो थी, इसलिए मैंने कहा इसकी मैट्रिक्स इसके रैंक 3 है। ए में देखें तो इसमें भी 8 रो ऐसी है जो पूरी 0 है, तो 3 रो ऐसी बची हैं जो कि मेरे पास नॉन जीरो है, तो यहाँ भी रैंक कितनी है, 3। विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि मेरे पास एक्स वाई जेड है। बिकॉज ऑल आर इक्वल, तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंडिविजुअल सबके वैल्यूज आएगी। चेक करते हैं, मेरे पास इक्वेशंस बनी, x प्लस z इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन बनी 2y माइनस प्लस z इज इक्वल टू -1। थर्ड इक्वेशन बनी -3z इज इक्वल टू -9। By the third equation we can say z is equals to 3. Put into, अगर दूसरी इक्वेशन रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, -2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 मीन्स y इज इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों वैल्यू पुटिंग 1 कर दूं तो आई विल गेट x प्लस 2 plus 3 is equals to 6 means x is equals to 1. Therefore, we can say solution is x is equals to 1, y is equals to 2, z is equals to 3. बहुत इजी मेथड है ये इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने का। आई थिंक इससे इजी कोई मेथड हो नहीं सकता। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखना मेरा वीडियो, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।